تمام حاضرین محفل کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ گلاسگو سے عوام کی تنظیم ہے قلم قبیلہ، اس کے ممبر ہیں، نامور شاعر ہیں، علمی اور ادبی شخصیت ہیں محمد اظہر صاحب۔ آپ بارسلونا میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو قلم قافلہ جو ہے یہاں جب بھی کوئی شعر و سخن سے وابستہ شخصیت تشریف لاتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے ایک محفل ہو جائے، چاہے محدود لوگ ہی تشریف لائیں لیکن سنا جا سکے، ایک محفل جمائی جا سکے۔ زبان اردو پہ کڑا وقت چل رہا ہے کیونکہ معیشت پہ، اردو بولنے والوں کی معیشت پہ کڑا وقت ہے، تو معیشت جو ہے وہ ہر چیز پہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ اخلاقیات ہو، وہ رہن سہن ہو، وہ کچھ بھی ہو، تو ایسے ہی زبان پہ بھی معیشت کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اردو زبان، اردو ادب وہ مشکلات کا شکار ہے، لیکن ایسے دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اردو بولنے والے بستے ہیں ایسے نامور لوگ موجود ہیں، جیسے یہاں بارسلونا میں ارشد نذیر ساحل ہیں، محترم افضال بیدار صاحب ہیں، جاوید مغل صاحب ہیں، جو کسی نہ کسی طور اپنے کام میں زبان کی ترویج کا جو ہے وہ ایک سلسلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا محمد اظہر صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا بابا صحابت جاوید مغل صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی صدارت میں جو ہے اس محفل کو آگے لے جائیں۔ اس ننھی منی نشست کا آغاز جو ہے وہ میں اس سے کروں گا کہ جاوید مغل صاحب تشریف لائیں اور چند کلمات سے نوازیں، اپنا اظہار خیال کریں۔ جناب جاوید مغل صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ یقیناً بارسلونا کا اعزاز ہے کہ یہاں پہ بہت سی ادبی علمی شخصیت تشریف لاتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک خوشی کے لمحات میں شامل ہے کہ جناب محمد اظہر صاحب تشریف فرما ہے، اور یہ اس قلم قبیلے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو گوروں کے شہر میں ان کو اردو کی زبان سمجھاتا ہے۔ پتہ نہیں انہیں سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن وہاں پہ ہماری کمیونٹی بہت سی موجود ہے۔ تو میں ان کے فیس بک میں دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ وہ طاہر چودھری، ہم نے اکٹھے کام کیا پاکستان میں، تو بعض بار اس کا فون آ جاتا ہے، تو بڑا اگریسو سا لڑکا تھا اس وقت، تو ہم بھی ابھی نئے نئے، تو وہ یقیناً آپ سے ملاقات ہوگی کیونکہ آپ کے فیس بک فرینڈ میں میں نے دیکھا۔ تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تھوڑا سا ٹائم شارٹ تھا تو اس لیے مزید دوست کچھ آگاہ نہیں ہو سکے، کچھ یورپ کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں ممکن نہیں ہوتا اس ٹائمنگ میں آنا۔ تو میں آپ کے کچھ شعروں کو دیکھ رہا تھا تو ایک شعر مجھے پرانا یاد آیا کہ نہ جانے کون سی منزل کی ہے انہیں تلاش، جو راہزنوں کو رہبر بنا رہی ہے۔ تو آپ کا اسی پیرائے میں ایک شعر میں نے پڑھا، وطن کو لوٹ تو جاؤں مگر سوچتا ہوں۔ یہ اظہر صاحب کا شعر ہے۔ میں ایسے گھومتے گھومتے اس سمندر میں چلا گیا جن میں ان کی کچھ شاعری بنی تھی۔ وطن کو لوٹ تو جاؤں مگر سوچتا ہوں، بنے ہیں رہزن رہبر سفر سے خوف آتا ہے۔ جاوید مغل صاحب کے خوبصورت کلمات ہم نے محفل کے آغاز میں ہی لے لیے ہیں تاکہ اس کے بعد جو ہے صرف شعر و شاعری ہو۔ تو میں شاعر اور متشاعر کے بیچوں بیچ کے ہی ہوں،
ایک غزل آپ احباب کی نظر کرتا ہوں، اس کے بعد ترتیب بار میں باقی دوستوں کو جو ہے دعوت دوں گا۔ عرض کیا ہے کہ سب انکار سبھی افکار بدل جائیں گے، سب انکار سبھی افکار بدل جائیں گے، اس دنیا کے سبھی معیار بدل جائیں گے۔ ان اصنام کی پوجا برسوں ابھی ہو شاید، ان اصنام کی پوجا برسوں ابھی ہو شاید، بت سازوں کے مگر اوزار بدل جائیں گے۔ اب جو سیکھ چکا ہے لفظ یہاں ہر جنگجو، اب لفظ کا جو ہے وہ دور چل رہا ہے، اس کو بھی انسان شر پھیلاتا ہوا ہی ہے یہاں۔ عرض کیا ہے کہ اب جو سیکھ چکا ہے لفظ یہاں ہر جنگجو، سو میدان سجا تو وار بدل جائیں گے۔ کچھ جاوید رہا ہے جو یہ رہے گی باقی، کچھ جاوید رہا ہے جو یہ رہے گی باقی، اس تہذیب کے بھی اطوار بدل جائیں گے۔ میں بھی رہنا سکوں گا، میں بھی رہنا سکوں گا، آج ابھی ہوں جیسا، میں بھی رہنا سکوں گا، آج ابھی ہوں جیسا، میری طرح میرے سب یار بدل جائیں گے۔ میں بھی رہنا سکوں گا، آج ابھی ہوں جیسا، میری طرح میرے سب یار بدل جائیں گے۔ شعر عرض کرتا ہوں کہ گل کو ناز تھا بو پر، گل کو ناز تھا بو پر، سو وہ بدل گیا ہم سے، گل کو ناز تھا بو پر، سو وہ بدل گیا ہم سے، سوچا بھی نہ تھا ہم سے خار بدل گیا۔ میں دو گھونٹ پلا کر آج اسے دیکھو تو، میں دو گھونٹ پلا کر آج اسے دیکھو تو، کیا کیا رنگ حسین رخسار بدل جائیں گے۔ کر لو لاکھ دوا تم فرق نہیں آنا کچھ، کر لو لاکھ دوا تم فرق نہیں آنا کچھ، لاحق عشق ہے کیا بیمار بدل جائیں گے۔ تاری سحر ہوا یا وہم بنا ہے رہبر، تاری سحر ہوا یا وہم بنا ہے رہبر، کیا احباب کریں تکرار بدل جائیں گے۔ ہو پیمانہ خرد گر شہر میں عزت کا، ہو پیمانہ خرد گر شہر میں عزت کا، تو پھر تکریم کے سب حقدار بدل جائیں گے۔ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے، جناب سابق وزیر اعظم میں جو وقت چل رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھا ہے کہ مشکل آن پڑی جو شاہ پہ پھر سے کوئی، مشکل آن پڑی جو شاہ پہ پھر سے کوئی، رفقا پھر یہ سبھی دربار بدل جائیں گے۔ اس دور میں جو لوگ سمندر پار کرتے ہیں اچھی زندگی کے لیے، شر سے بچنے کے لیے، اچھے روزگار کے لیے، وہ ڈوب کے مر جاتے ہیں۔ بہت سی زندگیاں ایسے ہی رستوں میں ضائع ہوگی۔ ان کے لیے ایک شعر ہے کہ کل جو ڈوب مرے ہیں سوچتے ہوں گے جا کے، کل جو ڈوب مرے ہیں سوچتے ہوں گے جا کے، اب حالات سمندر پار بدل جائیں گے۔ مختار سے اب فیاض گواہ خود آنکھ تیری جس کی ہے، اب فیاض گواہ خود آنکھ تیری جس کی ہے، اگلے دن وہ خبر اخبار بدل جائیں گے۔ کیا بات ہے، میں جانتا ہوں تیری نظر میں ہوں، کیا بات ہے۔ ارشد رسائل صاحب کی فرمائش پہ، اچھا میں جانتا ہوں کہ تیری نظر میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیری نظر میں ہوں، میں کیا کروں کہ ابھی تک سفر میں ہوں، ہوا ہوں سچ کے میں پھر آج روبرو،
हुआ हूँ सच के मैं फिर आज रूबरू, इसीलिए पड़ा लेकिन मगर में हूँ। मेरा जवाज न ढूंढो यहाँ वहाँ, मेरा जवाज न ढूंढो यहाँ वहाँ, मेरे लिए सब है तब अगर मैं हूँ। फकत हयात हूँ कैदे बदन में गर, फकत हयात हूँ कैदे बदन में गर, तो फिर मैं दश्त के हर एक शजर में हूँ। न हो खबर यहाँ किसी को यूं आओ तुम, न हो खबर यहाँ किसी को यूं आओ तुम, मैं आज शब यहाँ तेरे नगर में हूँ। यहाँ हवा का गुजर भी नहीं है जो, यहाँ हवा का गुजर भी नहीं है जो, किसी सनम या खुदा की पकड़ में हूँ। और आखिरी शेर अर्ज करता हूँ कि हवा बिगाड़ नहीं सकती कुछ मेरा, हवा बिगाड़ नहीं सकती कुछ मेरा, मैं अपनी माँ की दुआ के असर में हूँ। हवा बिगाड़ नहीं सकती कुछ मेरा, मैं अपनी माँ की दुआ के असर में हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। और अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगा इजाज प्रेमी साहब को कि वो आएँ और हमें कुछ अता करें। तो इजाज प्रेमी साहब। शायद हम शायद 92 चैनल देना और शायद से बल्कि करना मेरी तरफ से सब ने खुश आमदीद। हाज़िर में कर सकते हैं एक हमदिया नात है कल शेर। जहाँ तक ज़मीन व आसमां मिल रहा है, जहाँ तक ज़मीन व आसमां मिल रहा है, तेरी अज़मतों का निशान मिल रहा है। फिर से अपने सोए मुकद्दर जगाने मदीने को सारा जहां चल रहा है। ये तेरा ही एजाज है मेरे मौला, ये तेरा ही एजाज है मेरे मौला, वीराने में भी गुलसितां खिल रहा है। आपके जिक्र से नूर फैले दिलों में, आपके जिक्र से नूर फैले दिलों में, हमें राहतों का सामान मिल रहा है। या इलाही मुसलमान को फिर यकजा करते, या इलाही मुसलमान को फिर यकजा करते, ज़मीन ता फलक ये जहां जल रहा है। मेरे आका अपनी रहमत की बरसात कर दे, मेरे आका अपनी रहमत की बरसात कर दे, कि वक्त आप भी काफी गरम चल रहा है। दो शेर आपकी नजर। खूबसूरत जिंदगी की चाह में, खूबसूरत जिंदगी की चाह में, हम अकेले रह गए राह में। कितने संगदिल हो चुके, कितने संगदिल हो चुके लोग भी मुस्कुराना चाहते हैं आह में। एक गजल दे चंद शाह। उजालों से अंधेरों का सफर था, उजालों से अंधेरों का सफर था, बिछड़कर भी मोहब्बत का असर था। वहाँ अब शामियाँ आने लग चुके हैं, जहाँ अपना भी कोई हम सफर। वहाँ अब शामियाँ आने लग चुके हैं, जहाँ अपना भी कोई हम सफर था। मैं जिसके प्यार की खाता था कसमें, मैं जिसके प्यार की खाता था कसमें, वो मेरी चाहतों से बेखबर था। मैं जिसके प्यार की खाता था कसमें, वो मेरी चाहतों से बेखबर था। तुम जिसे सुनसान करके जा रहे हो, तुम जिसे सुनसान करके जा रहे हो, वही रास्ता तो अपनी राह गुजरा। मुझे इस हाल तक पहुँचाया इसने, मुझे इस हाल तक पहुँचाया जिसने, इजाज सोचो वो कितना बाहुनर था।
दर्शाने के लिए दुख और सुख का हिसाब लिख डालो, दर्द के सारे बाब लिख डालो। दुख और सुख का हिसाब लिख डालो, दर्द के सारे बाब लिख डालो। मिलन की घड़ियां नहीं नसीब तुझे, हिजर के सब अजाब लिख डालो। जो जिंदगी की तरह कटती नहीं, जो जिंदगी की तरह कटती नहीं, उसे ज़ुल्मत की रात लिख डालो। जो किसी संग कभी गुजारे थे, जो किसी संग कभी गुजारे थे, उन लम्हों को ख्वाब लिख डालो। जिगर का खून जिसमें शामिल हो, जिगर का खून जिसमें शामिल हो, ऐसे कतरे को आप लिख डालो। दुनिया को झूठ सच से क्या मतलब, दुनिया को झूठ सच से क्या मतलब, कुछ भी खाना खराब लिख डालो। कुछ भी खाना खराब लिख डालो। गज़ल मक्ता किताब हस्ती तमाम हो जाता, किताब हस्ती तमाम हो जाता, इजाज तुम इंतसाब लिख डालो। ये थे एजाज प्रेमी साहब, शाह लीला साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया तशरीफ आपके का। और हाफिज साहब आए, अगर ये जल्दी आ जाते तो महफिल करम और होता, मैं वहाँ होता, ये यहाँ होते। तो अब मैं दावत कलाम दूंगा बुजुर्ग शायर अफजाल बेदार साहब को। इनके बारे में मेरा ये कहना है कि ये बुजुर्ग शायर तो हैं, लेकिन इनका कलाम जो है वो बिल्कुल नौजवानों जैसा है। अफजाल बेदार साहब मलिक साहब, अजीज दोस्तों सब, एक शेर अर्ज करता हूँ क्या है। उम्र रफ्तार का एक खाबीदा इश्क, उम्र रफ्तार का एक खाबीदा इश्क एक माह जबी को देख कर फिर ताज़ा हो गया। आतिश इश्क यूं भड़कती है, आतिश इश्क यूं भड़कती है, आग जंगल में लगी हो जैसे, आग जंगल में लगी हो जैसे। और कि एक कथा है कि ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम कुदरत है जब बदन सुलगते हों, ये निज़ाम कुदरत है जब बदन सुलगते हों तो सामनों के मौसम में फक बारिशें होती हैं, तो सामनों के मौसम में फक बारिशें ही होती हैं। और एक नक्शा खींच दिया आपकी नवाजिश गज़ल के चंद अशार। वीरान सी आँखों में तूफान किसी और के थे, वीरान सी आँखों में तूफान किसी और के थे, ताबीर थी हमको मिली और ख्वाब किसी और के, ताबीर थी हमको मिली और ख्वाब किसी और के थे। और नाव साहिल पे जो पहुंची तो वो यूं रक्सा हुआ, नाव साहिल पे जो पहुंची तो वो यूं रक्सा हुआ, जो डूबे थे सफीने वो किसी और के थे, किसी और के थे। और हादसा कुछ इस तरह गुजरा के अब भरोसा न रहा, हादसा कुछ इस तरह गुजरा के अब भरोसा न रहा। किस्सा यूं है कि असबाब किसी और के थे, और वो किस्से जो तेरे हिज्र और मेरे वस्ल के थे, उन किस्सों में सभी किरदार किसी और, बहुत अच्छी ज़मीन, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, किसी और के थे। और लगता है उम्र जब बीत गई तो फिर ये एहसास हुआ, उम्र जब बीत गई बात बीती है कि उम्र जब बीत गई फिर एहसास हुआ, तो फिर ये एहसास हुआ था भरोसा जिन पर वो दोस्त किसी और। और एक अमूमन जब भी वाक़या होता है तो हमारे पाकिस्तान में और यहाँ भी जो हमारे नून लीग के दोस्त हैं, हम ऐठी ताकत है,
हम ऐसी ताकत है, हमने एटम बम बना दिया, हमने ये कर दिया, तो उस पर कोशिश किया कभी कि हमने बनाया एटम बम, दिल को लगा लिया एक गम, खाली ये करते फिरते हैं, हम भी किसी से नहीं हैं कम, हमने बनाया, ना ही इसको चला सकते हैं, ना ही इसको खा सकते हैं, शोर बहुत है और वैल्यू कम, हमने बनाया एटम बम, ना इसका सालन बना सकते हैं, ना ही इस पे रोटी पका सकते हैं, है शोरबा ज्यादा और रोटी कम, हमने बनाया एटम बम। और लीडरों की ये चोरी देखो, उस पे सीना जोरी देखो, चीजों का फुकदान हुआ है, बिजली खत्म और गैस है कम, हमने बनाया एटम बम। और जमहूरियत की जब बात करेंगे, जमहूर का ना कोई काम करेंगे, एक दूजे पे इल्जाम करेंगे, अखाड़ा ज्यादा और असेंबली कम, हमने बनाया। ये थे अफजाल बिहार, और अब मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ कलम काफिला के सदर और इस महफिल के सही मानों में मुंतज़िम अशर नज़ीर साहिल साहब को, जो तशरीफ लाएँ और कुछ अपना कलाम अता करें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मोहम्मद अज़हर साहब को। हमारी खुशकिस्मती कि कुछ वक्त के लिए बार्सिलोना आए हैं, तो हमने मौका गनीमत जाना और इन्हें सुनने के लिए महफिल सजाई। तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का शुक्रिया जो जल्दी जल्दी में आए। तो कलाम के कुछ ताज़ा अशार। हम गाँव के वासी अकेले रहने दो, हम गाँव के वासी अकेले रहने दो, शहर की रौनक और ये मेले रहने दो। हम गाँव के वासी अकेले रहने दो, शहर की रौनक और ये मेले रहने दो। एक अधूरा ख्वाब मेरा सरमाया है, एक अधूरा ख्वाब मेरा सरमाया है, पास मेरे तुम ये सरमाया रहने दो। और पंछी वरना प्यासे ही मर जाएंगे, पंछी वरना प्यासे ही मर जाएंगे। मैं जंगल हूँ मुझ में दरिया बहने दो, मैं जंगल हूँ मुझ में दरिया बहने दो। और देखो मेरी शान बढ़ाकर कम न करो, देखो मेरी शान बढ़ाकर कम न करो। मैं हूँ जितना मुझको इतना रहने दो। शुक्रिया। और मैं तो अज़ल से ही बीमारे उल्फत हूँ, मैं तो अज़ल से ही बीमारे उल्फत हूँ। मत छेड़ो तुम दर्द का किस्सा रहने दो। हम गांव के वासी अकेले रहने दो, शहर की रौनक और ये मेले रहने दो। एक और गजल पुरानी के लाखों थे गम गुसार अभी कल की बात है, लाखों थे गम गुसार अभी कल की बात है। कितना था हमसे प्यार अभी कल की बात है। और इस बेकसी में कोई भी अब पूछता नहीं, इस बेकसी में कोई भी अब पूछता नहीं। कितने थे सोगवार अभी कल की बात है। और मजबूर हूँ बुला नहीं सकता तुम्हारी याद, मजबूर हूँ बुला नहीं सकता तुम्हारी याद। था दिल पे इख्तियार अभी कल की बात है। और पजमुर्दगी का सहने चमन में पड़ा हुआ है, पजमुर्दगी का सहने चमन में पड़ा हुआ है। फूलों पे था निखार अभी कल की बात है, फूलों पे था निखार अभी कल की बात है। और पोशाके फाखरा में जो मलबूस आज हैं, पोशाके फाखरा में जो मलबूस आज हैं। दामन था तार तार अभी कल की बात है, दामन था तार तार अभी कल की बात है। और साहिल से किस लिए है भला उनको दुश्मनी, साहिल से किस लिए है भला उनको दुश्मनी। करते थे जान निसार अभी कल की बात है, लाखों थे गमगुसार अभी कल की बात है। और पोशाके फाखरा में जो मलबूस आज हैं, पोशाके फाखरा में जो मलबूस आज हैं।
दामन था तार तार अभी कल की बात है, क्या बात। लाखों थे गमगुसार अभी कल की बात है। और गजल के चंद अशार फिर आपको सुनने हैं। जी हमको है इसलिए फिर आप इस बात पे ये हौसला है आपका। शुक्रिया। इस बात पे दिल बरसों परेशान रहा है, वाह, इस बात पे दिल बरसों परेशान रहा है, क्या उसका कभी मेरी तरफ ध्यान रहा है। शुक्रिया। और जितना मैं नजर आता हूँ खामोश बज़ाहिर, जितना मैं नजर आता हूँ खामोश बज़ाहिर, अंदर मेरे उतना कोई तूफान रहा है। शुक्रिया। और मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं सब लोग, मौसम की तरह कैसे बदल जाते हैं सब लोग, इस बात पे दिल मेरा तो हैरान रहा है। और जंगल का रहा है यहाँ कानून हमेशा, जंगल का रहा है यहाँ कानून हमेशा, शहरों में दरिंदे थे कि इंसान रहा है। शुक्रिया। शुक्रिया। मैं जिसके लिए उम्र गवाया हूँ अपनी, मैं जिसके लिए उम्र गवाया हूँ अपनी, वो तो मुझे मुश्किल से ही पहचान रहा। मैं जिसके लिए उम्र गवाया हूँ अपनी, वो तो मुझे मुश्किल से ही पहचान रहा है। और साहिल मैं समंदर का कभी होता था हिस्सा, साहिल मैं समंदर का कभी होता था हिस्सा, अच्छा इस्तेमाल किया है। कुछ दिन तो मेरा चांद भी मेहमान रहा है। साहिल मैं समंदर का कभी होता था हिस्सा, कुछ दिन तो मेरा चांद भी मेहमान रहा है, इस बात पे दिल बरसों परेशान रहा है, क्या उसका कभी मेरी तरफ ध्यान रहा है। कुछ दिन चांद में मान रहा है, जगह दे देना चाहिए था। चांद नानी का स्याद ये थे जनाब अरशद अली साहिल साहब। और अब हम बिला ताखीर दावत कलाम देना चाहेंगे मोहम्मद अजहर साहब को, क्या तशरीफ लाएं। नहीं मेरे तो मैं आप तो शुक्रिया अदा करेंगे जनाब मोहम्मद अजहर साहब। वो रवायत है, थोड़ी सी तालीम बजा दें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है कि एज़ ए मेहमान मैं साहिल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी कि आपसे मुलाकात हो सके। और ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि आप जैसे अच्छे दोस्तों से यहाँ मुलाकात हुई। और हम शायर लोग या अदबी लोग जो होते हैं वो इसी बात को तरसते हैं जहाँ जाते हैं कि हमें कोई शायर मिले। जैसे बिजनेसमैन जाता है तो वो बिजनेस का सोचता है, कोई और जाता है कुछ और सोचता है, हम जहाँ जाते हैं हम सोचते हैं कि अदबी लोग हमें मिलें और हम आपस में बैठ के वो गपशप लगाएं। तो आज की महफिल भी इसी का एक सिलसिला जो इन्होंने मुलाकात की। मेरी हाफिज़ साहब से और इनसे मुलाकात आज से मैं 5-6 साल पहले रही और आज तक मुझे वो कॉफ़ी का कप याद है जो इन्होंने हमें एक जगह पिलाया था और वहाँ पर बैठ के हमने एक दूसरों को अपनी शायरी भी सुनाई थी। तो वो लम्हे थे 5-6 साल पहले के। तो आज मुझे खुशी हुई कि उसमें इजाफा हुआ है कुछ, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उम्मीद है कि और इजाफा होगा। और हम भी दावत देते हैं कि हमारे पास भी तशरीफ़ लाएँ अगर आपको कभी मौका मिले। और दूसरी बात ये कि ये रवायत हमारी रही है अदबी तंजीमों में कि लोग जो है ना बहुत कम साथ देते हैं, क्योंकि मईशत जो है ना माशी तौर पे देखा गया है कि माशी तौर पे तो शायर लोग जो है ना वैसे ही आम तौर पे उनकी कमाइयाँ कम होती हैं, ऊपर से उन्होंने शायरी करनी होती है, टाइम निकालना होता है। हमने इसका एक और हल निकाला है दोस्तों को इकट्ठा करने का। वहाँ पर मैंने मैनचेस्टर से अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया था। वहाँ बज़्म अदब का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 3 साल, और मुझे ये एजाज़ भी हासिल है कि अनवर मसूद साहब जो मज़ाहिया शायर हैं उनको मैंने यूके में पहली बार बुलाया, मुतारफ़ करवाया। इसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। वहाँ पर फिर मैंने सफ़ीरान अमन एक तंजीम बनाई, एक मैगज़ीन निकाला सफ़ीर 94 में। और इसके बाद और भी काफ़ी सारे अदबी किस्म के जो है ना, फिर मैं ग्लासगो चला गया। तो अभी आजकल ग्लासगो में हूँ और वहाँ हमने एक तंजीम बनाई कलम कबीला। तो कलम कबीले का हमने एक, जैसे आपको पता है कि लोग कम आते हैं बाहर निकलते हैं, तो हमने एक
तरकीब इस्तेमाल की है जो शायद यहाँ भी अगर आप इस्तेमाल करें, कि हमने वो जितने हमारे मेंबर्स हैं, हमारे 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबरों को हमने ड्यूटी लगाई हुई है कि भाई आप अपने साथ 3-3, 4-4 दोस्त साथ लेकर आए। अच्छा, वो 3-3, 4-4 दोस्त ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती लाने हैं, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं चलता और लोग मसरूफ़ होते हैं, तो उनको थोड़ा सा खींचना पड़ता है अदब की तरफ कि आएँ और बैठें कभी, फिर ये ना हो कि ये हमारी ज़ुबान जो है ना बिल्कुल ही पीछे चली जाए। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पर इस ज़ुबान को भी कायम किया हुआ है, यूके में भी। और मैं यहाँ देख के भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं अखबार भी पढ़ता रहता हूँ और अखबार जो है वो भी पढ़ता हूँ, और वैसे भी फेसबुक पे आ जाते हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर भी मैंने देखा है कि उर्दू अदब के लिए काफ़ी काम किया जाता है। और हाफिज़ साहब का तो हम नाम, और साहिल साहब का स्पेशली, चूँकि मैं दूसरों के नाम इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन इनके नाम हम तक पहुँचते रहते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज मैं आपके दरमियान हूँ, और उम्मीद है कि मेरे चंद गज़लें और चंद इशारा आप बर्दाश्त कर लेंगे, और उम्मीद है पसंद आएगी। मैं एक गज़ल से शुरू करता हूँ कि प्यार से बढ़कर पैसा अच्छा लगता है, प्यार से बढ़कर पैसा अच्छा लगता है, नोट भी कड़कड़ करता अच्छा लगता है। प्यार से बढ़कर पैसा अच्छा लगता है, नोट भी कड़कड़ करता अच्छा लगता है, और उजले उजले चेहरे मन के काले हैं, उजले उजले चेहरे मन के काले हैं, मुझको तो तेरा चेहरा अच्छा लगता है, मुझको तो तेरा चेहरा अच्छा लगता है, और दुनिया भर के शहर में घूम के देख आया। और ये वाकई हकीकत है, आई लव बार्सिलोना। दुनिया भर के शहर में घूम कर देख आया, तेरा शहर कुछ ज्यादा अच्छा, क्या बात, ज्यादा अच्छा लगता है। और दूर दूर की सैर में राहत है, लेकिन दूर दूर की सैर में राहत है, लेकिन मुझको घर में रहना अच्छा लगता है। और अपने चांदी बालों को जब देखता हूँ, अपने चांदी बालों को जब देखता हूँ, उसकी जुल्फ का सोना अच्छा लगता है, उसकी जुल्फ का सोना अच्छा लगता है। और तारों में गहना जाता है चांद अज़हर, तारों में गहना जाता है चांद अज़हर, मुझको चुप हो तन्हा अच्छा लगता है, चुप हो तन्हा अच्छा लगता है। और एक गजल की और कि बताए बिन वो अपना रास्ता खुद चुन के कहता है, बताए बिन वो अपना रास्ता खुद चुन के कहता है, करो जो दिल में आता है शराफत कुछ नहीं होती, करो जो दिल में आता है शराफत कुछ नहीं होती। और गलत फहमी में वो एक दूसरे से दूर बैठे हैं, गलत फहमी में वो एक दूसरे से दूर बैठे हैं, अना की बात है सारी अदावत कुछ नहीं होती, अना की बात है सारी अदावत कुछ नहीं होती। और सरापा इश्क में डूबे हुए हैं नौजवान सारे, सरापा इश्क में डूबे हुए हैं नौजवान सारे, तकाजे कच्ची उम्रों के मोहब्बत कुछ नहीं होती, क्या बात है, कच्ची उम्रों के मोहब्बत कुछ नहीं होती। सरापा इश्क में डूबे हुए हैं नौजवान सारे, सरापा इश्क में डूबे हुए हैं नौजवान सारे, तकाजे कच्ची उम्रों के मोहब्बत कुछ नहीं होती। और हमारे मुल्क का जो हमारे वतन का हाल है जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है प्यारे, है जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है प्यारे, हुआ साबित तजर्बों से अदालत कुछ साबित तजर्बों से अदालत कुछ नहीं होती। और मैं उसके दर पे बैठा हूँ हुई मुद्दत मुझे अज़हर, मैं उसके दर पे बैठा हूँ हुई मुद्दत मुझे अज़हर, फकत इनकार सुनते हैं अनायत कुछ नहीं होती, पर जो दिल में आता है शराफत कुछ नहीं होती। तो अगर इजाज़त हो तो जी आप सुनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। हुज़ूर आपकी मेहरबानी है कि अभी इन्होंने एक रेफरेंस दिया था शेर का, तो मुझे नज़र सामने आ गई कि उम्र भर वो जुल्म ज़ेरे आसमां करते रहे, उम्र भर वो जुल्म ज़ेरे आसमां करते रहे, रहज़नों पर रहबरों का हम गुमा करते रहे, रहज़नों पर रहबरों का हम गुमा करते रहे।
और जानते थे हम गवाही देंगे और आके हयात, जानते थे हम गवाही देंगे और आके हयात, खून दिल से हम रकम ये दास्तां करते रहे। और लूटने वाले हमेशा लूट कर जाते रहे, लूटने वाले हमेशा लूट कर जाते रहे, और हम जलूसों में फकत आओ फुगा करते रहे, हम जलूसों में फकत आओ फुगा करते रहे, और जो हमें सौंपा गया था काम वो हमने किया, हम तो अज़र खिदमत पीरो जवान। मैं चंद गज़लों के चंद थोड़े से अशआर सुना रहा हूँ। तुम्हारे हिज्र में जहाँ से गुजरने वाला नहीं, तुम्हारे हिज्र में जहाँ से गुजरने वाला नहीं, खुदा ना मारे अगर मैं तो मरने वाला नहीं, मैं तो मरने वाला नहीं। मैं जानता हूँ कड़ी है सजा मोहब्बत की, मैं जानता हूँ कड़ी है सजा मोहब्बत की, जो जख्म तुमने दिया है वो भरने वाला नहीं, जो जख्म तुमने दिया है भरने वाला नहीं। और हाफिज साहब के हजार दर्द के तूफान हैं बहरे दिल में नेहा, हजार दर्द के तूफान हैं बहरे दिल में नेहा, मैं इन बलाओं से दोस्त डरने वाला नहीं, मैं इन बलाओं से दोस्त डरने वाला नहीं। और बिगड़ गया हूँ कुछ ऐसे तुम्हारी चाहत में, बिगड़ गया हूँ कुछ ऐसे तुम्हारी चाहत में, नसीहतों से तो हरगिज संवरने वाला नहीं, नसीहतों से तो हरगिज संवरने वाला नहीं। और हजूर शेर सुनिए कि खज़ा में चुनता हूँ तेरे लबों से ताज़ा गुलाब, खज़ा में चुनता हूँ तेरे लबों से ताज़ा गुलाब, वो काम करता हूँ अक्सर जो करने वाला, काम करता हूँ अक्सर जो करने वाला नहीं। मुझे यकीन है अज़हर कि बेवफा मेरा, मुझे यकीन है अज़हर कि बेवफा मेरा, तुम अपना सर मेरे शाने पे धरने वाला ना मारे अगर मैं तो मरने वाला। तो मेरा ख्याल है कि आखिरी गज़ल मैं आपको सुनाऊं और इसके बाद फिर हम आपके हमारे यहाँ के सदर साहब को भी सुनते हैं, और उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। शायद काफ़ी पुरानी गज़ल है, और मैं हाफिज़ साहब को इनको मैं सुना भी चुका हूँ लास्ट उसमें, कि मोहब्बत में हवस का हो गुज़र अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत में हवस का हो गुज़र हुजूर अच्छा नहीं लगता, कि बिन मौसम का कोई भी समर अच्छा नहीं लगता, कि बिन मौसम का कोई भी समर अच्छा नहीं लगता। और महल ख्वाबों का मैं तामीर भी कर लूं तो क्या हासिल, महल ख्वाबों का मैं तामीर भी कर लूं क्या हासिल, कि तुझ बिन सच कहूँ ऐ दोस्त घर अच्छा नहीं लगता, कि तुझ बिन सच कहूँ ऐ दोस्त घर अच्छा नहीं लगता। और शेर मुलाजा हो कि मैं उड़ता फिर रहा हूँ आजकल ऊंची हवाओं में, मैं उड़ता जनाब जवानी में कुछ ऐसे होता है ना, कि मैं उड़ता फिर रहा हूँ आजकल ऊंची हवाओं में, मोहब्बत में नशेबे बहरुबर अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत में नशेबे बहरुबर अच्छा नहीं लगता। और अजब खुशफहमियों में मुब्तला करना अदाओं से, या दूसरी सूरत में कि हमें खुशफहमियों में मुब्तला करना अदाओं से, किसी को लूटने का ये हुनर अच्छा नहीं लगता। और मुकफ्फल देख के दरवाज़ा दिल दोस्त का अक्सर, मुकफ्फल देख के दरवाज़ा दिल दोस्त का अक्सर, मैं वापस लौट तो जाऊं मगर अच्छा नहीं लगता। और है मंजिल दूर और रास्ता कठिन है ज़ीस्त का अज़हर, है मंजिल दूर और रास्ता कठिन है ज़ीस्त का अज़हर, तुम्हारा साथ ना हो तो सफर वो गुजर अच्छा नहीं लगता। और ये दो शेर अपना नज़ीर साहब के लिए। मैं था कम नजर मिली ठोकरें मुझे गम नहीं किसी बात का, मैं था कम नजर मिली ठोकरें मुझे गम नहीं किसी बात का, गिरे दीदा वर जो जगह जगह इसी बात का तो मलाल है। हुजूर आपके गिरे दीदा वर
جو جگہ جگہ اسی بات کا تو ملال ہے، تو سمجھ گیا اسی عمر میں جو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، تو سمجھ گیا اسی عمر میں جو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، تیرے فکر میں ہیں بلندیاں، تیری شاعری بھی کمال ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سنا۔ آپ دوستوں نے سنا محمد اصغر صاحب کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ محفل کا رنگ اور ہوتا اگر دوست جو ہے وہ بر وقت پہنچتے۔ تو یہاں ہمارے جو دوست حافظ احمد صاحب تشریف فرما ہے، وہ ریڈیو پارسلونا ہو، قلم قافلہ ہو، بزم اہل قلم ہو، یا دیا ٹی وی آن لائن ہو، یہ ہم سب کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ایک اندھیری رات کا کوئی مسافر جا رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کوئی ایک ٹارچ ہو، ایک چراغ ہو جو واحد آسرا ہو، جو راہ دکھلاتا ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ چونکہ یہ تشریف لا چکے ہیں تو یہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلمات سے ہم سب کو نوازیں۔ حافظ احمد صاحب۔ السلام علیکم، اور اس حوصلہ افزائی اور پذیرائی کا دوستوں کی طرح فیض بھائی جو سراہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اظہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، تشریف آوری کا، خوش آمدید۔ جاوید صاحب آپ کا، شاہد صاحب، سب سارے دوست جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، رضوان آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، فردن سب کو شکریہ، جال کریمی خوش آمدید، آپ بھی تشریف لائے، باقی مہمان دوستوں کا بھی شکریہ۔ ایسا ہے کہ غلام محمد قاصر صاحب ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، میں چاہوں گا کہ اجلا رہے گا صرف محبت کے جسم پر، اجلا رہے گا صرف محبت کے جسم پر، صدیوں کا پیرہن ہو کہ پل کا لباس ہو۔ اجلا رہے گا صرف محبت کے جسم پر، صدیوں کا پیرہن ہو کہ پل کا لباس ہو۔ اور شاعر محبت بانٹتے ہیں، اور اظہر صاحب محبت بانٹتے گلاسکو سے بارسلونا تشریف لائے، اور انہوں نے بارسلونا کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا، اس کے لیے بھی ہم دل سے شکر گزار ہیں۔ یقیناً ہمارا مسکن یہی ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں اور اپنے گھر کی طرح عزیز ہے، کوئی اس کو سراہے یا ہماری کوششوں کو سراہے، کمیونٹی کی کوششوں کو اوور آل، جیسے یہاں پہ میڈیا گرو کر رہا ہے، شاید صاحب اس کی مثال ہیں کہ ہم پرنٹ میڈیا، ویب سائٹ سے الیکٹرانک میڈیا پہ آئے، اور یہاں پہ پانیئرز بیٹھے ہیں، افضال بیدار صاحب بیٹھے ہیں، جاوید مغل صاحب بیٹھے ہیں، جو ہم سے پہلے والی جنریشن ہے، جنہوں نے بہت سارے چیلنجز دیکھے اور ہمارے لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ تو میں آخر میں مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ آج ہی آپ کو انوائٹ کیا گیا اور آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ آپ کے باذوق ہونے کا ایک بڑا عمدہ ثبوت ہے، اور ہم تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور خوش بختی پہ نازاں ہیں کہ آپ جیسے دوست یہاں پر موجود ہیں کہ جب بھی بلائیں آپ تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اچھا، میں جب بھی اپنی جہالت کا، اپنی حماقت کا اعتراف کرتا ہوں تو دوست اسے عاجزی سمجھتے ہیں، وہ اعتراف ہے کھلے دل سے۔ مجھے بالکل بھی اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ کیسے پروگرام کو لے کے چلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کسے کہاں بلاتے ہیں۔ تو میں نے ابھی جو کیا ہے کہ صدر محفل کو سب سے پہلے بلایا ہے، ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ جاوید صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کا شکریہ ادا کریں، اظہر صاحب کا شکریہ ادا کریں، باقی دوستوں کا شکریہ ادا کریں تاکہ محفل کو وائنڈ اپ کیا جائے۔ جاوید مغل صاحب۔ اصل میں محفلوں میں سب سے زیادہ مظلوم صدور ہوتے ہیں کہ وہ خاموشی سے انہوں نے بیٹھنا ہے اور آخر دم تک ان کو پہلے نہیں بلایا جاتا، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ تو ان کا، بلکہ ہم سب زیادہ، ہمیں چاہیے کہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ یہ آخر دم تک بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہو گیا کہ یہی امتحان ہے، یہی ہے۔ یہ میں بھی حیران ہوں کہ یہ 2 دفعہ کی، 1 دفعہ حاضری ہو گئی، تو بات ابھی حافظ صاحب نے کہی، تو کل مجھے ارشد نے کہا، بلکہ ہفتے والے دن کہا کہ وہ پروگرام کرنا ہے، تو خیر یہ ویکینڈ پہ تو بند تھے۔ کل میں یہاں پہ آیا تو میں نے کہا پروگرام کے لیے مجھے ہال چاہیے، تو کہتی کب کے لیے؟ تو شکر ہے یہاں پہ اسپینش میں جو نا کل گزرے ہوئے آنے والے گل میں فرق ہے۔ میں نے کسی کو کل کے لیے
करती, इतनी जल्दी प्रोग्राम कर भी लेते हो तुम लोग। हाँ बस कर लेते हैं शॉर्ट प्रोग्राम। तो हमें एक आदत सी होगी हुई है कि हम शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि दोस्त आएँ, और यकीनन ये दोस्तों की मेहरबानी है कि तशरीफ आते हैं। और सबसे ज़्यादा तो अफसार बेदार साहब, उम्र भी और फासला भी इनका ज़्यादा है। ये बार्सिलोना से बाहर से तशरीफ लाते हैं, ट्रेन का सफ़र कम से कम एक घंटे का, और उसका ये फ़ायदा उठाते हैं कि पेंसिल कागज पकड़ी होती है तो ये एक आध गजल हो जाती है, ये अच्छा चेहरा नजर आ जाता है आपको वहाँ पे। तो बहरहाल जी बहुत शुक्रिया। तो हमारे सेल्फी ग्रुप के भी चेयरमैन साहब भी तशरीफ फरमा है, वो भी तशरीफ लाए हैं और उन्होंने पूरी वक्त की पाबंदी की है। तो आपके साथ जो दोस्त आए हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं। यकीनन जो अदब को चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो वही बात आपकी फिर नोट जो है ना कड़कड़ाता है कि अच्छा लगता है। तो आपका बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह आप तशरीफ लाए हैं। तो छोटी सी मैं सुनीर आपके लिए लाया था कि यहाँ पे हमने वो जैसे आपने वो एग्जिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यहाँ पे कैट एग्जिट इन्होंने शुरू किया था कि कतरनी को अलग देगा, उसके जो है ना ज़्यादा लोग मरकज़ की तरफ जाते हैं। तो ये एक पिन जो है ना पाकिस्तान और स्पेन की आपको याद दिलाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सब लोग।